Hello everyone, this is Bajaj. I hope you all are doing very well. In this video I am going to teach types of reaction. There are 5 types of chemical reaction. The first is combination reaction. Second, decomposition reaction. Third, displacement reaction. Fourth, double displacement reaction. And last, redox reaction. Let's start with combination reaction. A reaction in which a single product is formed from two or more than two reactant, that is called combination reaction. ऐसी रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट बनता है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से. जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बनाएंगे उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे. लेट्स सी एन एग्जांपल. यू कैन सी कैल्शियम ऑक्साइड. It reacts with H2O. Now what will it make? They will combine and they will make calcium hydroxide, CaOH का whole twice. Now see the physical states. Calcium oxide, it will be in solid state. H2O, it will be in liquid state, and calcium hydroxide is formed in the aqueous solution. Calcium oxide, it is also called quicklime. कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी बोला जाता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड स्लैग्ड लाइम. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम बोला जाता है. लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ कोल. कोयले को जलाने की रिएक्शन. कोल के अंदर क्या होता है? कार्बन. सो इन बर्निंग ऑफ कोल कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन. व्हेन वी हीट द कोल देन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन and it will make carbon dioxide gas. So when carbon react with oxygen, it will make carbon dioxide gas. So carbon is in solid state, it react with oxygen which is in gas state, it will make carbon dioxide in the gaseous form. You can see there are two reactant and they form one product. So when two reactant combine and one product is formed, it is called combination reaction. Let's see another example of combination reaction. Formation of water. In formation of water, hydrogen react with oxygen. Hydrogen which is in gas state, it will react with oxygen which is also in gas state. So you can see there are two reactant and they will combine and they will form one product which is H2O which is in liquid state. So there are two reactant and one product. This is called combination reaction. H2 react with oxygen, it will make H2O. There are two reactants and they combine, they form one product. This is called combination reaction. Let's discuss another reaction, decomposition reaction. What is decomposition reaction? A reaction in which a single reactant breaks down into two or more than two products. It is called decomposition reaction. ऐसी reaction जिसमें एक reactant टूट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है. There are 3 types of decomposition reaction. The first is thermal decomposition reaction, another is photolytic decomposition reaction, and the last electrolytic decomposition. Let's discuss about thermal decomposition reaction. A reaction in which a reactant breaks down into two or more than two products in the presence of heat. It is called thermal decomposition reaction. जब एक reactant break होता है दो या दो से ज्यादा product में in the presence of heat, it is called thermal decomposition reaction. Let's see an example. Ferrous sulfate, FeSO4. It has white color. So when we heat ferrous sulfate, it will decompose into ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. तो आप देख सकते हैं फेरस सल्फेट एक रिएक्टेंट है और जब इसको गर्म करेंगे हीट की प्रेजेंस में, जब इसको गर्म करेंगे तो ये 3 प्रोडक्ट बनाएगा. ऐसी रिएक्शन को हम थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे. अ रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो FeSO4 ब्रेक होगा जब हम इसको हीट करेंगे. इट विल मेक Fe2O3 ferric oxide, SO2 sulfur dioxide, SO3 sulfur trioxide. So when you heat the FeSO4, it will make Fe2O3
SO2 and SO3. FeSO4 is ferrous sulfate, Fe2O3 is ferric oxide, SO2 is sulfur dioxide, SO3 is sulfur trioxide. FeSO4 is in solid state, Fe2O3 in solid state, sulfur dioxide and sulfur trioxide, they are in gas state. Now we'll balance this equation. You can see there are 2 iron atoms in the right side. So what will you do? You will write 2 before FeSO4. So now this is balance equation. FeSO4 is ferrous sulfate, Fe2O3 is ferric oxide. In this reaction, one reactant breaks down into 2 or more than 2 products in the presence of heat. And the symbol of heat is delta. FeSO4, ferrous sulfate, is obtained from the crystal, ferrous sulfate crystal, FeSO4.7H2O. जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो ये FeSO4 बनाता है और उसमें से वाटर रिलीज हो जाता है। क्रिस्टल का फॉर्मूला है FeSO4.7H2O और जब क्रिस्टल को गर्म करेंगे तो उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे और ये बनाएगा FeSO4। FeSO4.7H2O का कलर ग्रीन होता है और जब इसको गर्म किया जाता है तो ये व्हाइट FeSO4 बना देता है। देन जब आप FeSO4 को गर्म करेंगे, व्हाइट FeSO4 को गर्म करेंगे तो वो ब्राउन Fe2O3, SO2 और SO3 बनाएगा। Let's see another example of decomposition reaction. कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करेंगे। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे इट विल गिव CaO प्लस CO2। कार्बोनेट को गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट एक रिएक्टेंट है, डिकम्पोज होकर के 2 प्रोडक्ट बनाएगा, इसलिए इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, वो भी सॉलिड फॉर्म में होगा, और CO2 गैस जो निकलेगी वो गैस फॉर्म में होगी। सो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, इट विल गिव CaO प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट इज इन सॉलिड फॉर्म, कैल्शियम ऑक्साइड इज इन सॉलिड फॉर्म and CO2 is gas. So we'll heat calcium carbonate which is in solid form. It will make CaO, calcium oxide, which is also called quicklime. It is used to manufacturing the cement. CaO जो है वो सीमेंट बनाने के काम में आता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं उसको गर्म करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट बनाने के काम में आता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ decomposition reaction. Let's see another example of decomposition reaction. We will heat lead nitrate. फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट इज PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को हमें डिकम्पोज करना है बाय हीटिंग। जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे इसमें येलो कलर का PbO निकलेगा, लेड ऑक्साइड, और ब्राउन कलर का फ्यूम निकलेगा, ब्राउन फ्यूम। और ब्राउन फ्यूम क्या है यहाँ पे? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का पाउडर होता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो येलो कलर का लेड ऑक्साइड बनता है और इसमें से ब्राउन कलर का फ्यूम निकलता है, ब्राउन कलर का धुआं जो कि NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करेंगे, लेड ऑक्साइड PbO बनेगा, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगी। आप देख सकते हैं रिएक्टेंट 1 है, प्रोडक्ट 3 है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। When a reactant breaks down into 2 or more than 2 products in the presence of heat, it is called thermal decomposition. तो लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन किया हमने PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको हीट करेंगे, PbO बनेगा प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। PbO येलो कलर का होगा, NO2 ब्राउन कलर का फ्यूम होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। अगर हमें इसका पता लगाना है तो हम एक ग्लोइंग स्पिंस्टर, ग्लोइंग अगरबत्ती जब हम उसके पास लेके जाएंगे तो वो ज्यादा ग्लो करने लग जाएगा। ग्लोइंग स्पिंस्टर लेके जाएंगे तो वो ज्यादा ग्लो करेगा, इससे हमें पता पड़ेगा कि ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। लेट्स बैलेंस दिस इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। सबसे पहले आप देखेंगे राइट साइड में ऑक्सीजन कितनी है? 5, 2, 2, 4 और 1, 5। लेफ्ट साइड में 3, 2 जा 6 है। तो आप क्या करेंगे? PbO के आगे 2 लगा देंगे। तो PbO के आगे 2 लगा देंगे तो लेड नाइट्रेट के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा ताकि Pb बराबर हो जाए। जब लेड नाइट्रेट के आगे आपने 2 लगा दिया तो नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन कितने हो गए? NO3 का होल ट्वाइस है तो N नाइट्रोजन 2, 2 जा 4 हो गया। तो राइट में भी आपको NO2 के आगे 4 लगाना पड़ेगा। जैसे आप 4 लगाएंगे दोनों तरफ ऑक्सीजन भी बराबर हो जाएगी। 6, 2 जा 12 और 4, 2 जा 8 प्लस 2, 10 प्लस 2, 12 हो जाएंगे। दोनों तरफ 12 हो जाएंगे। तो आपको बैलेंस करने के लिए PbO के आगे 2 लगाना पड़ेगा, लेड नाइट्रेट के आगे 2 लगाना पड़ेगा ताकि Pb बराबर हो जाए। जब आप Pb के आगे 2 लगाएंगे तो नाइट्रोजन 4 हो जाएंगे, इसलिए राइट में भी आपको नाइट्रोजन 4 लगाना पड़ेगा। Let's do study about electrolytic decomposition. What is electrolytic decomposition? When a reactant breaks down into 2 or more than 2 products in the presence of electricity. Electrolytic decomposition किसे कहेंगे? जब एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
लेट्स सी द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन ऑफ H2O. H2O को डिकम्पोज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट विल मेक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इट विल मेक हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. H2O को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोज करेंगे, इट विल मेक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. लेट्स बैलेंस दिस इक्वेशन. राइट साइड में देखेंगे ऑक्सीजन 2 है, तो आप H2O के आगे 2 लगा दोगे. जब आप H2O के आगे 2 लगा दोगे, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे लेफ्ट में, तो राइट में भी आपको 4 करने पड़ेंगे, इसलिए आप H2 के आगे 2 लगा दोगे. कैसे बैलेंस करोगे? सबसे पहले ऑक्सीजन को देखोगे. ऑक्सीजन कितने एटम है? 2. तो आप क्या करोगे? H2O के आगे 2 लगा दोगे. जैसे H2O के आगे 2 लगाओगे, हाइड्रोजन 4 हो जाएगी. 4 हो जाएगी हाइड्रोजन 4 हो जाएगी, तो राइट में भी 4 करनी पड़ेगी आपको, इसलिए H2 के आगे आप 2 लगा दोगे. लेट्स टू स्टडी अबाउट फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन. फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या होता है? When a reactant breaks down into 2 or more than 2 product in the presence of sunlight. जब एक रिएक्टेंट 2 या 2 से प्रोडक्ट में टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसको फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन बोलते हैं. जब एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन इट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सिल्वर क्लोराइड का डीकम्पोजिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट से ग्रे हो जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में डीकम्पोज हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में. तो AgCl डीकम्पोज होकर के Ag+Cl2 बनाएगा. AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में Ag+Cl2 बनाएगा. सिल्वर क्लोराइड जिसका कलर व्हाइट होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में रखने पे इसका कलर ग्रे हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag एंड Cl2. तो सिल्वर क्लोराइड एक रिएक्टेंट है जो सनलाइट के प्रेजेंस में डीकम्पोज होकर के Ag और क्लोरीन बनाता है. अब आप इसको बैलेंस करेंगे. आप राइट में देखेंगे Cl2 है, तो आप राइट में क्या लगा देंगे? ट्वाइस AgCl कर देंगे. तो जब आप AgCl के आगे 2 लगाएंगे तो Ag भी तो 2 हो गए, इसलिए राइट साइड में Ag के आगे 2 लगा देंगे. कैसे बैलेंस करना है आपको? Cl2 है तो AgCl के आगे 2 लगा देंगे. अब Ag 2 हो गए, तो इसलिए Ag के आगे भी 2 लगा देंगे. व्हाइट सिल्वर क्लोराइड का कलर ग्रे हो जाता है ड्यू फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन. लेट्स डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. A displacement reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its compound is called displacement reaction. ऐसे रिएक्शन में जिसमें एक more reactive element less reactive element को displace कर देता है उसके compound में से, उससे हम displacement reaction कहते हैं. दोबारा समझना. अब more reactive element displace करेगा less reactive element from its compound. It is called displacement reaction. Let's see an example. Fe एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है. यहाँ पे आयरन जो है ना वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, एंड CuSO4 इसमें Cu जो है वो आयरन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव एलिमेंट है. तो Fe क्या करेगा? Cu को डिस्प्लेस कर देगा. Fe प्लस CuSO4 ये क्या बनाएगा? FeSO4 प्लस Cu बनाएगा, बिकॉज Fe इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट एंड Cu इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट. तो Fe जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ये Cu को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड में से, और ये क्या बनाएगा? FeSO4 प्लस Cu. ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे. आप देख सकते हैं Fe मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये CuSO4 में से Cu को डिस्प्लेस कर देगा. क्यों? क्योंकि Cu लेस रिएक्टिव एलिमेंट है. तो ये रिएक्शन क्या बनेगी? FeSO4 प्लस Cu. नाउ सी केयरफुली. Cu प्लस FeSO4. कॉपर जो है ना वो मोर रिएक्टिव नहीं है. आयरन के कंपैरिजन में कॉपर मोर रिएक्टिव नहीं है, तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता उसके कंपाउंड में से, क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव नहीं है. देन यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस. इफ इन एग्जाम इट कम्स Cu प्लस FeSO4, देन यू हैव टू राइट no reaction will take place because copper is less reactive, so it cannot displace iron from FeSO4, so it will be no reaction. तो जो सिंगल एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होना चाहिए. कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होना चाहिए. लेट्स सी द बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन. व्हाई डज द आयरन nail become brownish in color and the blue color of the copper sulfate solution fat? आयरन नेल का कलर ब्राउनिश क्यों हो जाता है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू से फेड क्यों हो जाता है? जब किसी आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इमर्ज किया जाता है. जब किसी आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इमर्ज किया जाता है तो आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से फेड कर देगा. एज यू कैन सी द रिएक्शन,
Iron is more reactive. It will displace copper from copper sulfate solution and it will make FeSO4 plus copper. That's why iron nail become brownish in color and copper sulfate solution becomes fat due to displacement reaction. Let's see another chemical equation of displacement reaction. Zinc. Zinc is more reactive. So will it displace copper? Of course, because zinc is more reactive. So it will displace copper from copper sulfate solution. So Zn plus CuSO4, it will make ZnSO4 plus Cu. So Zn plus CuSO4, it will give ZnSO4 plus Cu. Zinc is more reactive than copper. So it will displace copper from copper sulfate solution. And it will make ZnSO4 plus Cu. Zinc, which is in solid state, it will react aqueous solution of copper sulfate, then it will make aqueous solution of zinc sulfate and copper will be formed in the solid state. Now let's see another reaction. Lead, Pb, lead plus copper chloride, CuCl2. So lead, it will react with CuCl2. Of course, lead is more reactive, so it will displace copper and it will make PbCl2 plus Cu. As you can see, lead is more reactive and copper is less reactive. So lead will displace copper from copper chloride. It will make PbCl2 plus Cu. Lead, which is in solid state, it will react with aqueous solution of copper chloride and it will form aqueous solution of lead chloride and copper in the solid state. अब आप मुझे बताएंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है Cu प्लस ZnSO4 तो क्या बनेगा? सोचो सोचो, तो क्या बनेगा? Cu प्लस ZnSO4 कुछ नहीं बनेगा because copper is less reactive, so it will not displace. There will be no reaction. Cu plus ZnSO4, there will be no reaction. Let's discuss about double displacement reaction. What is double displacement reaction? A reaction in which there is exchange of ion take place. ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है बिटवीन टू कंपाउंड्स, इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है बिटवीन टू कंपाउंड्स, इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. सिंपल एग्जांपल, AB plus CD, it will make AD plus CB. There are two compounds AB and CD. When they react, so the exchange of ion take place and they will form AD plus CB. इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम A B पे प्लस माइनस लिखेंगे. A जो है वो पॉजिटिव आयन है और B जो है वो नेगेटिव आयन है. सिमिलरली C भी पॉजिटिव आयन है और D नेगेटिव आयन है. अब क्या होगा, A पॉजिटिव आयन जो है वो D नेगेटिव आयन के साथ चला जाएगा और कौन सा कंपाउंड बनाएगा, AD. सिमिलरली जो C प्लस वाला कंपाउंड है वो B माइनस के पास चला जाएगा और क्या कंपाउंड बनाएगा, CB. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसको हम दोबारा समझ सकते हैं. ए पे पॉजिटिव चार्ज है, बी पे नेगेटिव चार्ज है, सी पे पॉजिटिव चार्ज है, डी पे नेगेटिव चार्ज है. तो ए पॉजिटिव किसके साथ चला जाएगा, डी नेगेटिव के साथ, और सी पॉजिटिव किसके साथ चला जाएगा, बी नेगेटिव के साथ. तो कंपाउंड क्या बनेंगे, ए डी प्लस सी बी. लेट्स टेक अ केमिकल रिएक्शन. Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इट विल रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड BaCl2. सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, Na2SO4. बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, BaCl2. देयर आर टू कंपाउंड्स इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस. सोडियम आयन किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ, क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड. सिमिलरली बेरियम किसके साथ जाएगा, सल्फेट के साथ, और क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4. तो रिएक्शन क्या होगी, BaSO4 प्लस NaCl. So sodium sulfate, it will react with barium chloride and it will make barium sulfate BaSO4 plus NaCl sodium chloride. सोडियम सल्फेट में पॉजिटिव आयन सोडियम है, नेगेटिव आयन सल्फेट है. सिमिलरली बेरियम क्लोराइड में पॉजिटिव आयन बेरियम है और क्लोराइड नेगेटिव आयन है. तो सोडियम किसके साथ चला जाएगा, क्लोराइड आयन के साथ, क्या बनाएगा, NaCl. सिमिलरली बेरियम किसके साथ जाएगा, सल्फेट आयन के साथ, क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट. सो इट इज़ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन because exchange of ion take place between two compounds, so it is called double displacement reaction. This reaction is also called precipitation reaction. Why it is called precipitation reaction? Because barium sulfate is formed which is precipitate
And what is precipitate? The insoluble substance in water is called precipitate. इस रिएक्शन में जो बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस होता है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेट, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं. द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, it is called precipitation reaction. So this double displacement reaction is also precipitation reaction. Why? Because barium sulfate is precipitate which is insoluble in water. In this reaction, aqueous solution of sodium sulfate react with aqueous solution of barium chloride and it will form precipitate barium sulfate and aqueous solution of sodium chloride. Let's start with oxidation and reduction reaction. What is oxidation? ऑक्सीडेशन ऐसी रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन का ऐड होता हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल और या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. रिडक्शन किसे कहेंगे? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो, हाइड्रोजन का एडिशन हो और इलेक्ट्रॉन का गेन हो. देखो, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होगा. ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होगा. ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है. इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस. इन रिडक्शन रिएक्शन द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस. नाउ विल डिस्कस अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे. ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस, इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड अनदर सब्सटेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, देन इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. Redox reaction in which a substance is getting oxidized and another substance is getting reduced, it is called redox reaction. ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस होता है उसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. रेडॉक्स रिएक्शन का दूसरा नाम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी है. लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल Cu plus O2. It will make CuO. When copper is heated in the presence of oxygen, then copper oxide is formed. When copper is heated in the presence of air, then black copper second oxide is formed. जब कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो कॉपर पे ब्लैक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है. As you can see, when copper is heated in the presence of air, then black copper second oxide is formed. Cu plus O2, it will give CuO on heating. Now you can see copper is being oxidized, that's why CuO is formed. So this is called oxidation reaction. Now see how equation is balanced. You can see there are two oxygen atoms in the left hand side. So what will you do? You will write 2 before CuO. But when you write 2 before CuO, then copper also will be 2. So what will you do? You will write 2 before Cu on the left hand side. Now this equation is balanced. When copper is heated in the presence of air, so black copper oxide is formed. Cu plus O2, it will give CuO. If you want to remove the black copper second oxide layer, then what we will do? We'll pass hydrogen gas through CuO. अगर हम हाइड्रोजन गैस को CuO से पास करते हैं तो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की लेयर रिमूव हो जाएगी. When hydrogen gas is passed through the CuO, then black copper second oxide layer is removed and Cu plus S2O is formed. So CuO plus S2 क्या बनेगा? Cu plus S2O. When hydrogen gas is passed through the CuO layer, then it will make again Cu and S2O. जब हाइड्रोजन गैस को CuO से पास किया जाता है तो ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की लेयर हट जाती है और Cu plus S2O बनता है. Now see the equation carefully. CuO is being reduced into Cu. आप देख सकते हैं CuO जो है उसमें से ऑक्सीजन रिलीज हुआ है एंड ऑक्सीजन का रिलीज होना इज कॉल्ड रिडक्शन. क्लियर? ऑक्सीजन का रिलीज होना क्या होता है? रिडक्शन. तो आप देख सकते हैं CuO में से ऑक्सीजन रिलीज हुआ है एंड Cu बना है. सो कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड इनटू Cu.
सिमिलरली S2 में देखिए आप ऑक्सीजन जुड़ा है, S2 इज बीइंग ऑक्सीडाइज इनटू S2O, हाइड्रोजन बीइंग ऑक्सीडाइज इनटू H2O, सो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। सो CuO इज बीइंग रिड्यूस्ड इनटू Cu, CuO का रिडक्शन हुआ है Cu में, एंड हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू H2O, एंड हाइड्रोजन is oxidized into H2. Let's see the reduction of zinc oxide with the help of carbon. With the help of carbon, we'll reduce zinc oxide. कार्बन की हेल्प से हम जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे. So ZnO plus carbon, zinc oxide plus carbon, it will make Zn plus CO on heating. ZnO plus carbon, it will make zinc plus carbon monoxide. ध्यान रखना, यहाँ बच्चे गलती से कार्बन डाइऑक्साइड लिख देते हैं, कृपया करके कार्बन डाइऑक्साइड लिखने की गलती ना करें. नाउ सी दिस रिएक्शन केयरफुली. जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू Zn. जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकला है और Zn बना है, तो जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ? रिडक्शन हो गया. एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO. कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड में. सी केयरफुली. Zinc oxide is being reduced into Zn and carbon is being oxidized into carbon monoxide. आप देखेंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है जिससे जिंक बना है. अब जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन क्यों हुआ है? क्योंकि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर रिलीज हुई है. जब ऑक्सीजन बाहर रिलीज होती है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं. सिमिलरली कार्बन में देखिए अब ऑक्सीजन जुड़ी है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज, कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ी है, दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सीडाइज. और इस रिएक्शन में आप देखेंगे बोथ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन टेक प्लेस.